A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the last unit of your syllabus, that is in computers in accounting as well as the computerized accounting system. And in the last video, we will start a new chapter, the new topic of your syllabus, that is in फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. और कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि इन दिस चैप्टर दैट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं. तो बेसिकली यू नो वेरी वेल, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वी प्रिपेयर द टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज एन इनकम स्टेटमेंट and second one is a position statement. And in the income statement we prepared the two accounts. The first one is a trading account and second one is a profit and loss account. And in the position statement we prepared the balance sheet. So ये basic चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी. The very important things of today's video is कि पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट पे डिस्कस करेंगे, हाउ वी विल प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस शीट कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. ओके, सो विदाउट क्रिएटिंग एनी डिले, लेट्स वी मूव टू द टुडेज टॉपिक दैट इज एन इनकम स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट काइंडली मेक अ प्रॉपर नोट्स इन योर कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज अ इनकम स्टेटमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस. बिकॉज ऑफ अगर आप फ्यूचर में देखोगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या क्लास 12th में भी देखोगे, तो इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बेसिकली व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द क्लोज ऑफ द ईयर. यानी इनकम स्टेटमेंट जब बिजनेस अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तब हम प्रिपेयर करते हैं. इट डिस्क्लोजेस द मैनर इन विच द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अराइव्ड एट. इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट का जो बेसिक होता है या कह सकते हो उसका जो एम होता है वो होता है टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. बेसिकली इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द मैनर, इट डिस्क्लोजेस द मैनर in which the amount of profit and loss of the year is arrived at. It means with the help of the income statement, every businessman compute the profit and loss of the year. Okay, and profit and loss of the year, it can be classified into the two categories. Income statement can be classified into the two categories. It means in the income statement we prepare the two types of the account. The first one is a trading account and second will be a profit and loss account. And with the help of the trading account we find out the gross profit and gross loss, and with the help of the profit and loss account we calculate the net profit and net loss. Okay, so the basic thing beyond the preparation of the trading account and PL account is to determine the, so let's we move to the one by one explanation regarding the trading account and profit and loss account. Okay, so please note down, the first one is a trading account. Trading account is an account, क्योंकि मैं ये रिवाइज करा रहा हूं, मैंने पहले भी इस सब टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिया, लेकिन अब समराइज कर रहा हूं.
रिवाइज करने के लिए यू नो वेरी वेल द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं ट्रेडिंग अकाउंट के. लेट्स सी इट. इन द ट्रेडिंग अकाउंट प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज with the help of the trading account we find out the gross profit and gross loss of the business. Okay, so trading account के basis से हम क्या prepare करते हैं, क्या find out करते हैं. The first one is a gross profit or gross loss. It means with the help of the trading account we find out the gross profit or gross loss. Second, trading account shows the relationship between sales and cost of goods sold. It shows the relationship between sales and cost of goods sold. यानी ट्रेडिंग अकाउंट से जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. दैट इज एन सेल्स एंड नंबर सेकंड इज एन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, द नंबर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, द फॉर्मूला ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट. द फॉर्मूला ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस cost of goods sold, and the formula of gross loss is cost of goods sold minus sales. In short way we can say that if in any accounting year sales is excess from the cost of goods sold, so it will be known as a gross profit. And if in an accounting year cost of goods sold is more than the sales, so it reflects the gross loss of the certain year, certain accounting period. Okay, so this is the third and very important part of this. And number third, trading account is an account. Trading account is an account, and you know very well account में दो side होते हैं. The first one side is a debit and second will be side is a credit. So trading account is based on the nominal account. So trading account is just like a nominal account. That's why it records all the expenses in the debit side and all the incomes in the credit side. Okay, so these are the important points related to trading account. So kindly please make a proper notes in your copy. It is a revision notes for your clarification as well as for your better understanding regarding the trading account. अब next topic उठता है सर, what is the format of the trading account? Format क्या है trading account का? So please note down in your copy. The format of the trading account is, पहले हम लोग trading account को टॉप में लिखते हैं ऑफ. जिस भी कंपनी का हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी प्रोप्राइटर का, सपोज ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर राम, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्याम, मोहन, and next line is for the year ended, किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज एज फॉलोज, दैट इज एन पर्टिकुलर्स अमाउंट and particulars and amount. Okay, so this is a format of the trading account, and you can see that there are basically two sides of the trading account. The first side is the debit side. It means the left hand side is the debit side and right hand side will be known as the credit side. Okay, अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और इसी चीज को हमें यहां पुट ऑन करना पड़ता है. देख लो ध्यान से, पहले तो
अगर हम ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो इट इज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई वी शोन इन द डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? नॉमिनल इन नेचर होता है, सो डेबिट होगा. परचेज इज एन नॉमिनल नेचर, सो टू परचेज. ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का. डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्लियर है, नॉमिनल है, एक्सपेंस है, direct expense. As well as the fourth one is a closing stock, and you can see that closing stock is deducted and sales is also deducted from the cost of goods sold. That's why sales is a revenue, it is an income and it is a nominal nature, but it is an income. So by sales, as well as we write down the by closing stock. Okay, so अगर आपने ये फॉर्मेट बना लिया तो फॉर्मेट बनाने के बाद यू कैन सी दैट इन द डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड इन द क्लोजिंग क्रेडिट साइड बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे? टोटल करोगे. एंड जब आप उसका टोटल करोगे, अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है सो इट विल बी नोन एज एन ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट साइड में बैलेंस आने का मतलब क्या है? योर इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंस, सो इट विल बी नोन एज एन ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, and if the debit side is greater than the credit side, so it will be known as a gross loss. और एक बिजनेस में एक टाइम में, एक अकाउंटिंग ईयर में या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. इट क्लियर? सो प्लीज मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट इन योर कॉपी. लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल रिलेटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने सब चीजें प्रॉपरली नोट कर ली होंगी कॉपी में. अब नाउ वी आर टेकिंग द वन प्रॉब्लम related to the preparation of the trading account, and the question is find out gross profit and prepare trading account of Messrs Shah for the year ended 31st March 2020. 31st March 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है. एंड द इंफॉर्मेशन आर, एंड दिस इज एन ट्रायल बैलेंस. जब भी आपको बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोलेगा तो बेसिकली वो क्या प्रिपेयर करेगा, आपको क्या गिवन करेगा? ट्रायल बैलेंस. सो दिस इज एन ट्रायल बैलेंस और द इंफॉर्मेशन आर ओपनिंग स्टॉक, and the opening stock is 20,000. Next will be a purchase and sales 80,000, 1,60,000. Purchase and sales 80,000, 1,60,000. And returns 400, 1,200. Return will be a 400, 1,200. And next will be a wages is 12,000. Wages is 12,000. Okay. And next will be a carriage inward 20,000. Sorry for the mistake. And then dock charges will be a 8,000. And the sales हो गया. And outside the trial balance there is a given balance related to the closing stock, and the value of the closing stock is rupees 1,60,000. And you can see that the formula of the gross profit will be a sales minus cost of goods sold. And you can see that cost of goods sold means opening stock plus purchase plus direct expense
minus closing stock. Okay, so what is the meaning of direct expense? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. बेसिकली यहां पे दो पैरामीटर है या दो डिफरेंसेस हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट, सो इट विल रिकॉर्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट विल बी रिकॉर्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट. तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बिजनेस का, तो उसमें हम सिर्फ कौन से एक्सपेंस को शो करते हैं, इट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस. देखिए मैंने आपको सिंपली बताया भी था कि डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन. यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इनकर्ड होते हैं. इट विल बी नोन एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक अ वेजेस एज वेल एज इंपोर्ट ड्यूटी. जब आप किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो आप उस पर ड्यूटी चार्ज करते हो, ड्यूटी पे करते हो, सो इट विल बी नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी. एज वेल एज रॉ मटेरियल का प्रोक्योरिंग चार्जेस. अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, सो यू विल पे द वैल्यू रिगार्डिंग द सच काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल्स, एज वेल एज डॉक चार्जेस. And you know very well, a lots of direct expenses are beared by the manufacturer to manufacture any product from the raw material to finished goods. यानी बेसिकली किसी भी गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंस बियर करते हैं, एंड ऑल द एक्सपेंसेस विल बी नोन एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस. एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज यू विल पे द लाइट रेंट एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फैक्ट्री. यानी अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे करो, फैक्ट्री का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, सो इट विल बी नोन एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस. व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगता है, और फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो जब भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोड्यूस करने में जो भी खर्चा आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस. और डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस. बिकॉज ऑफ आई बिलीव दैट कि जितना आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा, जितना आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही बेटर आपका न्यूमेरिकल क्लियर होगा. सो यू कैन सी दैट these are the various example related to the direct expense. Let's we move to the preparation of the trading account. तो trading account कैसे बनाएंगे, फटाफट बना लेते हैं. trading account of Messrs Shyam for the year ended 31st March 2020 and the format अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेट को. फॉर्मेट विल बी particulars amount, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, पापा वाला फॉर्मेट, PAPA. ओके, एंड द इंफॉर्मेशन आर इज द नंबर वन इज टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक विल बी 20,000. परचेज एंड सेल्स दोनों साथ में दिया है, तो डेबिट बैलेंस, डेबिट वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे, परचेज, एंड क्रेडिट वैल्यू को क्या माना जाएगा, सेल्स. So to purchase, the value of the purchase is 80,000 and the minus will be a purchase return. अब यहां पर सवाल उठता है, डेबिट में परचेज रिटर्न होगा कि क्रेडिट में परचेज रिटर्न होगा. सो हमेशा याद रखिएगा, अगर रिटर्न भी दोनों साइड दिया है, डेबिट एज वेल एज इन द क्रेडिट, सो डेबिट रिटर्न विल बी नोन एज एन सेल्स रिटर्न, अपोजिट, एंड क्रेडिट वाला जो रिटर्न है, इट विल बी नोन एज एन सेल्स परचेज रिटर्न. Because purchase placed on the debit side, that's why purchase return will be placed on the credit side. So purchase return will be at 1200, and by sales, the value of the sales is 1,60,000 minus sales return,
and the value of the sales return will be a 400. How? 400 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि sales will be placed on the credit side, that's why sales return will be placed on the debit side. So उसको डिडक्ट कर देते हैं, that is in 78,800 and it will be a 1,59,600. And now we write down the closing stock. Closing stock will be a 1,60,000. Okay, and the direct expense of your business, कौन कौन से एक्सपेंस दिए हैं? वेजेस एंड डॉक चार्जेस. वेजेस एंड डॉक चार्जेस पूरी तरह से क्या है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के क्राइटेरिया में काउंट होते हैं. सो डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी 12,000 प्लस 8,000. द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी 20,000. सो आपको करना क्या होगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? आप ऐड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन और क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन. सो यू कैन सी दैट क्रेडिट साइड में टोटल करने पे कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में टोटल करने पे आ रहा है 006,913, 3,19,600. इधर भी कितना आना चाहिए, 3,19,600. ओके, और उसमें से ये सारी वैल्यू डिडक्ट करेंगे, दैट इज इन 78,800, 20,000, 98,800 and 1,18,800. So 3,19,600 minus 1,88,800, and the gross profit will be a 1,07,8,9,10,11. 11,8,800, 1,18,800. सो ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया आपकी एक्सपेंस. इनकम में से एक्सपेंस को क्या करना होगा, माइनस करना होगा. सो वी फाइंड दैट 8,0 and 0,312. So your gross profit will be a 2,08,000. This is your answer. और अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी so please inform me. And you know very well trading account is prepared before the preparation of the PL account. That's why gross profit को हम लोग CD लिखते हैं, gross profit CD, carried down. Okay, so please note down this solution in your copy properly, and thereafter we will move to the next concept. Okay, okay, so after preparation of the trading account, let's we calculate the gross profit with the help of the formula. And you know very well what is the formula of the gross profit. The formula of the gross profit is sales minus cost of goods sold. अभी just मैंने आपको बताया, the formula of the gross profit will be a gross profit equals to sales minus cost of goods sold. And what is the formula of the sales? The sales equals to sales minus sales return. ये आपको याद रखना है. Sales is free from any kind of the return. It means अगर कोई भी रिटर्न हुआ है तो उसे सेल्स में से क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा. ओके, as well as if we are talking about the formula of cost of goods sold, so the formula of cost of goods sold will be a cost of goods sold equals to opening stock plus net purchase. Net purchase means purchase minus purchase return plus direct expense. Direct expense you know very well, any expenses which are incurred at the time of the production of the final product, finished product, minus closing stock. So the cost of goods sold will be opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. So let's we take the one example to understand this concept very carefully. And the example is calculate
find out the gross profit, find out the closing stock, sorry for that, closing stock. If opening stock is 30,000, cash sales 70,000, क्वेश्चन इज फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक. आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है. फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक इफ ओपनिंग स्टॉक 30,000, cash sales will be a 70,000, credit sales will be a 50,000, purchase that is an 80,000, and rate of gross profit on cost, rate of gross profit on cost. कॉस्ट पे रेट क्या है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्स पे भी और कॉस्ट पे भी. सो दिस विल बी अ सेल्स रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल बी 33.33%. इसको ऐसे भी गिवन हो सकता है एग्जाम में 1/3, ऐसे भी गिवन हो सकता है. सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट एंड फाइंड आउट दिस क्लोजिंग स्टॉक. सो ये है क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन से हम कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33.33% और क्वेश्चन में सेल्स इज गिवन. सो 70,000 प्लस 50,000 दैट इज इन 1,20,000. सो टोटल सेल्स विल बी 1,20,000. ओके, एंड कॉस्ट GP is 33.13% of the cost. So let cost equals to 100 and GP will be a 33.33% on the cost, that is in 33.33. So your sales will be a 133.33. Okay, now आपको क्या कैलकुलेट करना है. सेल्स इज गिवन, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट, क्योंकि अगर कॉस्ट पता चल जाएगा तो आपको इजीली कॉस्ट ऑफ गुड्स पता चल जाएगा. तो आप ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द बिजनेस. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू sales is 133.33 and total sales is 1,20,000 divided by 133.33 into 100. Okay, this will be a 3 times and this will be a 4 times. Okay, and cost of goods sold will be a 90,000. Okay, now cost of goods sold will be a 90,000 equals to opening stock will be a 30,000, net purchase will be a 80,000, direct expenses not given, minus closing stock. कितना इजी आप देख लो, फॉर्मूला बन गया. अब ये क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा और बाकी चीजें इधर आ जाएंगी. LHS एंड RHS आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 1,10,000. ऐड करने पे ये चीजें यहां आएंगी तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो माइनस 90,000. सो योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000. सो दिस इज योर आंसर. So you can see that with the help of the formula we can easily find out the gross profit, we can easily find out the cost of goods sold, we can easily find out the closing stock. It means all the things which are given at any point of the formula we will easily calculate it with the help of the available information. यानी information में अगर हम ही इसी क्वेश्चन में closing stock is given, closing stock is 20,000, अगर हम कहें क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000 सेम क्वेश्चन में, और आपसे कहा जाए फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट कर लोगे, देख लो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग.
80 प्लस 30 110 110 20 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 90. So your cost of goods sold will be a 90,000 and sales will be a 1,20,000. So your GP will be a 30,000. Is that clear? देखो यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 आया था और सेल्स तो गिवन ही है 1,20,000. जी भी आपने फाइंड आउट कर लिया. सो अब एक फॉर्मूला से जो जैसी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस से यू कैन इजिली फाइंड आउट एनीथिंग फ्रॉम योर फॉर्मूला इफ द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन इन योर कॉपी प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट we will talking about the next account which are included in the income statement, that is in profit and loss account. So before starting the new account, that is in profit and loss account, I requested to all the students, each and every student, kindly solve the additional question given in your book. क्योंकि हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले ही लगा लिए हैं. अब इसके एडिशनल क्वेश्चन क्योंकि रिवीजन चल रहा है, सो आई रिक्वेस्ट एंड आई कह सकते हो आई इंस्ट्रक्ट ऑल दी स्टूडेंट प्लीज सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम योर एडिशनल प्रैक्टिस सेट ऑफ योर बुक related to the trading account and please concentrate on the formulas because formula के जो short questions हैं, जो short questions आते हैं 2 और 3 marks के, वो ज़्यादातर important होंगे. ओके, एंड जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें एडजस्टमेंट भी गिवन होगी. सो आई होप टुडे वी डिस्कस द 2 important topic. That is, the first one is a calculation of the gross profit with the help of the trading account, as well as we discuss the calculation of the gross profit with the help of the formula. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any kind of doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Take care. Bye bye.